یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ السلام علیکم ناظرین، میری طرف سے تمام اہلِ اسلام کو ماہ رمضان مبارک ہو، اور خدا کرے انشاءاللہ کہ یہ ماہ مقدس بیت المقدس کے باسیوں کے لیے بالخصوص اور انٹائر امت مسلمہ کے لیے بالعموم امن و خوشحالی اور آزادی کی خوشیوں سے بھرا ہو۔ مگر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ آج ہم ان مقدس لمحات میں جب اپنوں کو تہنیتی پیغام بھیج رہے ہیں، عین انہی گھڑیوں میں نہتے فلسطینی امریکی سفارت خانے کی بیت المقدس میں منتقلی پر اسرائیلی مشین گنوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ناظرین، 1997 میں جارجیا کے ایک سفارتکار کی گاڑی کی ٹکر سے جوویان والٹرک نامی ایک امریکی لڑکی ہلاک ہو گئی، اور جارجیا کا سفارتکار گرفتار بھی ہوا اور اوور سپیڈنگ کا اس نے اعتراف بھی کیا۔ مگر جارجیا کے صدر پر سفارتکار کے سفارتی استثناء کو ختم کرنے کے لیے دباؤ بڑھنے لگا، اور اتنا بڑا کہ امریکی شہری سڑکوں پر نکل آئے اور سفارتکار کو 70 سال قید کا مطالبہ کرنے لگے۔ دباؤ میں آ کر جارجیا کے صدر نے اپنے سفارتکار سے سفارتی استثناء اٹھا دیا، اور عدالت نے سفارتکار کو کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 21 سال قید کی سزا سنا دی۔ یہ ہوتے ہیں آزاد ملک، اور اسے کہتے ہیں خود مختاری۔ یہ خودداری کہاں کی ہے کہ امریکی نیشنل اشارہ توڑے، نوجوان عتیق بیگ کو کچل دے، بھون دے، پولیس گرفتاری کے بجائے باعزت سفارت خانے منتقل کر دے، ملزم کا میڈیکل کرنا گوارا کیا جائے، اور نہ ہی اس کی زبان میں اس کا بیان ریکارڈ کیا جائے۔ یہ خود مختاری کہاں کی ہے کہ پولیس کی سفارش کے باوجود ملزم کرنل جوزف کا نام ECL میں ڈالنے کی کوئی جرت نہ کر سکے۔ اور یہ کہاں کی ساورنٹی ہے کہ صاحب بہادر خصوصی طیارے سے اپنے سفارتکار کو نور خان ایئر بیس سے اٹھا کر اڑا کر لے جائیں، لیکن ریاست اور ریاستی ادارے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ ٹریفک قوانین کی وائلیشن اور تعزیرات پاکستان کی دفعات کا مجرم کرنل جوزف ہماری ساورنٹی کو ٹھڈا مار کر روانہ ہو جائے، اور پوچھئے اس ماں سے کہ جس کا جوان لخت جگر منو مٹی تلے چلا گیا، پوچھئے اس باپ سے بھی کہ جس کے بڑھاپے کا سہارا بے موت مار دیا گیا۔ نہ دیت، نہ قصاص، نہ ہی کوئی انصاف۔ حیرت ہے کہ دعوے آزاد اور خود مختار ریاست کے، مگر اس ملک میں کرنل جوزف ایک نوجوان کو کچل ڈالے، یا پھر ریمنڈ ڈیوس سرعام 2 شہریوں کو بھون ڈالے، ریاست بے بس ہو جاتی ہے۔ ہاں، البتہ پاکستانی شہریوں کو امریکہ کے حوالے کرنا ہو تو ایمل کانسی طرز پر مبینہ ہزاروں شہریوں کو اٹھا کر حوالے کر دیا جائے، یا پھر آزاد اور خود مختار ملک کے وزیر اعظم کو کپڑے اتار کر امریکی ایئرپورٹ پر تلاشی دینا پڑ جائے، تو اس پر ہمیں ذرا برابر ندامت نہیں ہوتی انفارچونیٹلی۔ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد شینی مزاری صاحبہ کو، پلوشہ خان صاحبہ کو اور ملک احمد خان صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ اسٹے ود اس، نیوز آئے۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیری مزاری صاحبہ، چیف وپ ہیں اپنی جماعت کی نیشنل اسمبلی میں، پلوشہ خان صاحبہ ہمارا ساتھ دے رہی، پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور ترجمان پنجاب حکومت ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں PMLN کی جانب سے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ شیری بی آپ سے آغاز کروں گی، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج کل میاں صاحب نے پچھلے 48 گھنٹے میں فورن پالیسی پہ اتنا کامنٹ کیا ہے، آئسولیشن کے اوپر اتنے گلے شکوے کیے ہیں۔ ریممبر جب طارق فاطمی صاحب ان کی ٹیم کا حصہ تھے، ایڈوائزر تھے فورن افیئرز پہ، تو مصر میں جب جنرل سیسی نے اوورٹیک کیا اور کوئی امیجیٹ بیان یا موقف نہیں اپنایا، کوئی ہفتے ڈیڑھ بعد کافی ڈانٹ ڈپٹ کی میاں صاحب نے ان کی کہ کیوں نہیں ہماری اوفیشل پوزیشن بتائی گئی۔ تو فلسطین میں جو ابھی ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کلیئرٹی ہے ہمارے بیان میں، ہمارے موقف میں، ہماری پوزیشننگ میں؟ دیکھیں، فارن آفس کی طرف سے ایک تو میں پہلے بتا دوں کہ نیشنل اسمبلی کی تو کافی سٹرونگ قرارداد کل گئی ہے یونانیمسلی، لیکن فارن آفس کا بیان تو آیا ہے کنڈیمنگ کہ جو ہو رہا ہے، لیکن جو اسٹرینتھ اس میں آنی چاہیے تھی، جو ایک زوردار قسم کا جو آنا چاہیے تھا موقف، وہ کچھ مسنگ ہے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں تو مسلم ممالک میں بھی کہ ٹرکی نے سٹرونگ ایکشن لیا ہے، لیکن باقی اب گلف عرب ممالک دیکھ لیں، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ آج کویت کی غالباً آئی ہے کہ ہم UN میں ریز کریں گے، تو UN سیکیورٹی کاؤنسل میں تو آلریڈی پاکستان نے ریز کیا، اور ممالک نے، نان مسلم ممالک نے ریز کیا ہے، اور UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ایک ویٹو کی وجہ سے نہیں پاس ہو سکی، امریکن ویٹو سے۔
تو ہماری کوئی پتہ نہیں ہم کدھر سے اپروول پہلے لینا چاہتے ہیں بفور گیونگ اے اسٹرانگ رسپانس. اب آپ یہ دیکھیں امریکہ کا یہ جو کرنل ہال کا جو ہوا ہے یہ کتنی غلط بات ہے کہ آپ کا ایک شہری قتل کیا جائے ایک امریکی سفارت خانے کے بندے سے, اور آپ پہلے اتنا قوم کو بڑا وہ کہیں گے. وہی ریمنڈ ڈیوس آپ کو پتہ ہے مجھے تکلیف کس بات کی ہوتی ہے, اور یقین مانے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا خون اتنا سستا ہو گیا ہے, اتنا بے وقت ہو گیا ہے. پہلے آپ نے مشرف اور وہ پریزیڈنٹ لگا آپ ایک خراش آ جائے ایک امریکی پہ یا خراش آ جائے کسی اور فورنر پہ, ایک تہلکا آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے. نہیں, اور دیکھیں پہلے بھی اتنا سستا خون, جوان بچے بھونے جا رہے ہیں, ہم رینڈیشنز کرتے رہے اپنے لوگوں کی چھپ کے اپنے, اور اب آپ نے ایک اس کو روک نہیں سکے. حالانکہ امریکہ نے اپنا, جیسے آپ نے جارجیا کا واقعہ مینشن کیا, امیونٹی یہ نہیں ہوتی کہ بالکل ہی آپ کچھ ایکشن نہیں لے سکتے. امیونٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو کنڈکٹ کر سکیں وداؤٹ فیئر اور امپیڈیمنٹ. وینا کنونشن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ نہیں ہے کہ آپ معذرت کے ساتھ نشے کی حالت میں دھت ہو جائیں, ریڈ ٹریفک لائٹ اڑا کے آگے چلے جائیں, بھون دیں ایک جوان بچے کو, قتل عام کریں اور کہیں جی ڈپلومیٹک امیونٹی. یہ بالکل غلط ہے. اتنا کہ وینا کنونشن میں یہ کہیں نہیں لکھا. اور why are we not raising a UN cry? میاں صاحب کے تو دل کے اتنے قریب ہیں یہ ایشوز ابھی. آپ کے لگتا ہم کیسے آئیسولیٹڈ ہیں, ہم کیسے اس نہج پہ پہنچ گئے. ان کے دل کے کوئی قریب نہیں ہے, ان کو صرف اپنا سروائیول اس وقت ہے اور کچھ نہیں ہے. کل بھی ریزولوشن اپوزیشن کی طرف سے ڈرافٹ ہوئی, اپوزیشن نے انیشیٹو لیا اور اپوزیشن نے پریزنٹ کی. پلوشہ صاحبہ, آپ کی جماعت نے یہ روایت رکھی, ریمنڈ ڈیوس آپ کے دور میں ہوا, گو کہ پنجاب میں میاں برادران تھے, وفاقی حکومت آپ کے پاس تھی. اگر میں آپ سے ایک نٹشل میں پوچھوں کون ذمہ دار تھا ریمنڈ ڈیوس کو بھی واپس بھیجنے میں؟ گو کہ وہ تو چلو پھر پورا پروسیجر ہوا, ایک لیگل پروسیس ہوا, دیت قصاص کی بات ہوئی. ادھر تو وہ بھی نہیں ہوا, وہ غریب ماں باپ بیٹھے ہوئے بولنے سے ڈر رہے ہیں. وہ تو ڈپلومیٹ بھی نہیں تھا بھائی, ڈپلومیٹ بھی نہیں تھا. ایبسولوٹلی. سو ان اے نٹشل اف آئی آسک یو, کون تھا اس کے پیچھے, کیا مسئلہ تھا, کیا دباؤ تھا؟ کون تھا یہ تو میں نہیں کہہ سکتی, کیونکہ obviously یہ تو حکومت کا کوئی ذمہ دار آپ کو بتا سکے گا. لیکن بات یہ کہ جہاں تک پتہ چلا ہے, مطلب مجھے پتہ ہے کہ وہ شاید یہ نہیں مانتا تھا کہ وہ ڈرنک تھا یا وہ کسی نشے میں تھا. مگر جو بھی کرنل جوزف کا کہتے ہیں, جی ریمنڈ ڈیوس کا تو نہیں, ریمنڈ ڈیوس کی بات نہیں, کرنل جوزف کی آپ نے کہا شاید وہ کسی نشے کی حالت میں اس نے کوئی ایڈمیشن کیا ہے. مجھے یہ پتہ ہے گولی نکال کے ٹھک لگائی ہے نا, کولڈ بلڈڈ مرڈر. دیٹ واز جسٹ کولڈ بلڈڈ مرڈر. دیکھیے فارن آفس کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اور یہ بہتر طور پہ تو وہی بتا سکتے ہیں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. ہو سکتا ہے اس پہ کوئی پریشرز بھی ہوں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں اور وہ اس کو آنر کرتے ہیں. لیکن اب اس کے پیچھے کیا اصلیت ہے وہ میں تو جان نہیں سکتی, کیونکہ نہ ہم حکومت میں ہیں اور نہ ہم. چلیں آپ جانتی نہیں ہیں کہ تب آپ کی ذمہ داری تھی یا کوئی اور قوتیں تھیں. You don't know, you can't comment. Of course I can't, because میں ایسی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ مجھے پتا ہو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. مگر جو بھی بات ہے, جو بھی کہانی ہے, اس کو سامنے ضرور آنا چاہیے. لیکن کل میں نے آپ سے کہا, ابھی میں ریمنڈ ڈیوس کی بات کر رہی تھی, آپ لوگ گورنمنٹ میں تھے تب نا. ابھی آپ کس کی, آپ ریمنڈ ڈیوس کی بات کر رہی ہیں؟ ابھی میں کرنل جوزف کی بات کر رہی ہوں, دو الگ الگ لوگ ہیں. میں کرنل جوزف کی ہی بات کر رہی ہوں, میں ریمنڈ ڈیوس کی بات کر رہی ہوں. Lost a chance. I'll update you in a second. Just give me a chance. ملک صاحب السلام علیکم. ملک صاحب مجھے بتائیے گا کہ سر یہ کیا طریقہ ہے, نہ قصاص نہ دیت نہ کوئی بات. آج بوڑھے باپ سے ہماری ٹیم کی بھی بات ہوئی, وہ پہلے مان گئے, پھر وہ کترانے لگے, پھر انہوں نے کہا میں نہیں آؤں گا, میرے اور بھی بچے ہیں, میرے اور بھی مجھ پہ پریشرز ہیں. یہ ہے ریاست پاکستان سر, کہ خون بھی اپنے بچے کا ہو, جوان لاشا بھی اپنے گھر سے اٹھایا جائے, اور اس کے بعد انصاف کی نہ کوئی دور تک آواز ہو, نہ کوئی MNA گیا, نہ کوئی MPA گیا, نہ کوئی اور انسان اس کے پاس گیا, اور آج بھی وہ بولنے سے کترا رہے ہیں. سر یہ ریاست ہوتی ہے ماں جیسی؟ دیکھیں مہر, میں ان پرنسپل جو آپ کہہ رہی ہیں میں بھی یہی جذبات رکھتا ہوں, لیکن اور یہ بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے, اور اس طرح جو ہوا ہے غلط ہوا ہے. یہ اب اس کی ایک سائیڈ ہے. اب اس سے آگے جو معاملہ ایک حادثہ پیش آیا, وہ اس کی ریکلیس ڈرائیونگ تھی, کرمنل ایکٹ تھا, ریڈ لائٹ کراس کی, اور اگر یہ پوزیشن جو پہلے میڈیا پہ بتائی گئی کہ وہ ڈرنک تھا, اور پھر پولیس کی رپورٹس میں وہ نگیٹ بھی کی گئیں بعد میں. ان دونوں صورتوں کی دو پوزیشنز ہیں. نمبر 1 کہ یہ قتل خطا تھا کہ قتل عمد تھا,
और अगर ये उसकी एक रेकलेस ड्राइविंग के एक्ट में था तो क्या उस पर वो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी जो क्लेम की जा रही है और बताई जा रही है उसका इतलाक़ होता है कि नहीं होता? और जो वियना कन्वेंशंस ऑन डिप्लोमेटिक कम्युनिटीज़ हैं वो इसको किस हद तक हेल्प करते हैं? ये सारी बातें अपनी लीगल पोजीशन में सामने हैं, लेकिन एज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स यस डिप्लोमेटिक कम्युनिटी थी, लेकिन दूसरी तरफ जो आपने पहले कहा और जो श्री बीबी कह रही थी, उन दोनों बातों से इत्तेफाक करना पड़ेगा कि अगर ये ऐसी हैं भी तो इस पे पाकिस्तान को, जैसे आपने जॉर्जिया की एग्जांपल कोट की, बड़ी जायज़ बात की आपने, वहाँ पर अगर इस तरह के पब्लिक प्रेशर में आके वहाँ के प्रेसिडेंट ने उनको लेट गो किया और तो दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ, अमरीकियों ने डाला था ना, हमारा काम था, हमारी गवर्नमेंट का काम था, हमारे शहरियों का शायद काम था, क्योंकि आई डोंट अंडरस्टैंड सर कि ये किस तरह की हम आज भी कॉलोनी है किसी की कि इधर आते हैं, मजे करते हैं, याशियां करते हैं, रेड लाइटें तोड़ते हैं, जवान बच्चे उड़ा के मार देते हैं। नहीं, आप दुरुस्त कह रही हैं, कुछ करने वाले ही नहीं। आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन ये बदकिस्मती से भी मामला ऐसा ही है, इसको बेहतर करना चाहिए। I mean, आपकी तो वैसी बेहतरीन रिलेशनशिप नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो आके ट्वीट से लेके आउटराइट रिजेक्शन कर दी, पाकिस्तान को कह दिया कि ये झूठी रियासत है, ये हमें एक्सप्लॉइट करती आई है, आपका कोएलिशन फंड रोक दिया। व्हाट इज देयर टू लूज एट दिस पॉइंट कि अगर आपकी हुकूमत आवाज उठाती और डट जाती कि भाई ऐसी की तैसी उठाओ इसकी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी, वेव ऑफ करो, इसे नहीं हिलने देंगे। मैं देखिए, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का एक्ट है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ट्वीट को रिजेक्ट किया, वो उनकी अपने मुफादात होंगे, अपनी एक पॉलिसी होगी, आपने अपने हिसाब किताब से चलना है, आपकी अपनी पॉलिसी है, और उसमें अगर आपकी कहीं लगता है कि मीडिया में ये पल्स आ रही है और बड़े ज़ोर से आ रही है कि सब ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया, नोबडी इज एक्सेप्टिंग इट, तो सर हम इससे क्या फर्क पड़ता है? हम बेकारी तो नहीं है, हम नॉर्थ कोरिया की तरह डट क्यों नहीं जाते साहब? अपनी एस्टैब्लिशमेंट की तो आप लोग रत्ती भर इज्जत नहीं करते, अपनी एस्टैब्लिशमेंट को आईना दिखाने में रत्ती भर आपके कायदे वो नहीं करते, बल्कि मुंबई अटैक्स तक पहुंच जाते हैं। हमारे शहरियों के साथ जो हो रहा है, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को क्यों नहीं प्रेशर में डालती आपकी हुकूमत? या फिर मान लिया जाए कि आपके कायदे इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से ही तो मदद चाह रहे हैं, उनसे उनके ऊपर दबाव कैसे डाल दें? मैं इस तासुर के साथ इत्तफाक नहीं करता, ये दो डिफरेंट पोजीशंस हैं। जैसे मैंने तो क्योंकि Give me something I can believe then. मैं नहीं, एक्चुअली देखें, जो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो फैक्चुअली इनकरेक्ट होगा तो आपको पूरा हक हासिल होगा कि आप मुझे मेरी बात पे यकीन ना करें, लेकिन अगर ये डिप्लोमेटिक कम्युनिटी, वो तो उसकी तो कोई ऐसी लीगल पोजीशन है ना, अगर एक रेकलेस, आई अंडरस्टैंड वियना कन्वेंशन है, आई अंडरस्टैंड ये चीजें, इसीलिए मैंने एक मिसाल दी सर, मैं आपको 5 मिसालें और भी लिस्ट करके दे सकती हूँ। मेरा मसला है कि अगर मैं कहती ना सर, अगर मुझे इजाजत दीजिए, अगर मैं एक स्टेटमेंट से आगे बढ़ सकती ना कि हुकूमत ने कहा है कि वेव ऑफ कर दो, तो मैं कहती जनाबे वाला वाकई हमने बहुत कोशिश की, मगर वाकई शायद अंकल सैम से, अमेरिका बहादुर से कोई नहीं है, कंपैरिजन तो नहीं टक्कर ले सकते इससे आगे। सर आपने इस कप को इधर से इधर उठा के हल्का सा रख दिया, मैं कह रही हूँ एटलीस्ट उसको उठा के मारिए तो सही, शोर तो बरपाओ, एक केओस तो क्रिएट हो। ये मेरा कहने का मतलब है, इतना सस्ता है ये खून। एक्चुअली डिप्लोमेटिक कम्युनिटी मिसयूज हो रही है, वियना कन्वेंशंस आप प्लीज पढ़ लें, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आप जिस मुल्क में हो उसका कानून तोड़े तो आप को छुट्टी हो जाएगी, ये कहीं नहीं लिखा। मैंने वियना कन्वेंशंस ना सिर्फ पढ़ी है, पढ़ाई है, वियना कन्वेंशंस का ये कहीं नहीं है। और वीडियो आप देख लें, उसने साफ गलती की, रेड लाइट तोड़ के जिस बेदर्दी से आके उस मोटरसाइकिल वाले को कत्ल किया, हमारे पाकिस्तानी बच्चे को, इसमें आपका काम था हुकूमत का, उसको यहां से नहीं जाने देते जब तक अमेरिका उसकी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी वेव नहीं करता। वियना कन्वेंशन में भी नाम नहीं डाला, आपने ड्रामा किया, कौम के जज्बात से खेला। आज जहाज एक दिन आया, वापस भेज दिया, फिर 2 दिन बाद जहाज आके गायब कर दिया उसको। जी मलिक साहब ने ये भी कहा हमारी कारकर्दगी कैसी रही है, ख्वाजा आसिफ से पूछे, फॉरेन ऑफिस उनको अलविदाई फेयरवेल एक वो भी दे रहा है, इवेंट भी उनके लिए प्लान किया है। ऑफ कोर्स लंबा चौड़ा होगा, टैक्स पेयर के पैसे से ही होगा, मगर जनाबे वाला इनसे कोई पूछ तो ले कि ये कितना सस्ता खून है, इसके ऊपर एक प्राइस लगा दें। मैं देखिए, मेरी दिक्कत ये है, जैसे भी डॉक्टर साहबा ने कहा, मैं इत्तेफाक करता हूँ इन प्रिंसिपल जो आप बात कर रही हैं कि पाकिस्तान का किसी भी शहरी का, किसी भी मुल्क के शहरी का खून इतना अर्जा नहीं होना चाहिए कि कोई एक रेकलेस ड्राइवर, कोई एक ड्रंकन ड्राइवर ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करे और एक बच्चे की जान ले ले, और फिर डिप्लोमेटिक कम्युनिटी। मगर है ना मियां साहब को मुंबई में बहे हुए खून का बहुत दर्द है, इधर के खून का नहीं है, नहीं बोलता आप में से कोई। अब मुझे थोड़ी इजाजत दे दें प्लीज, मैं एक बात कर लूं प्लीज। देखिए, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह मैंने इसको समझा
कि अगर एक रेकलेस ड्राइविंग, एक ट्रैफिक सिग्नल को काटना एक ऑफेंस है, अब अगर ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन करने पर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को वेव किया जा सकता था, और एक रेकलेस जो उस एक्सीडेंट के अंदर डेथ हुई, या तो होता ना कि ये शूट आउट का केस होता जैसे रेमंड डेविस का केस था, दिस वाज एन एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट जो है परहैप्स ये डॉक्टर साहबा बेहतर जानती होंगी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिलेशंस की टीचर। सर हमने तो ये फैसले नहीं करने, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ, ना दैयत ना किसास, ना कोई पूछने गया उस गरीब बाप को। सर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू सर। एग्री करता हूं, अल्लाह माफ करे, कोई साहिब इक्तदार हो, उसकी बेटी या उसका बेटा हो, कोई खराश तो लाके दिखाए इस मुल्क के अंदर, मगर इस मुल्क में उम्रा जो है। जी सर, दिक्कत ये है कि वो बच्चा भी मेरा बच्चा है, मेरा भाई है। आप जब आपका कोई बेटा या भाई है तो मेरा बेटा या भाई है, पाकिस्तानी है। मैं तो सिर्फ आपको एक लीगल पोजीशन कहने की बात है ना, वोट को इज्जत दो। देखिए अर्ज तो सुने में, वोटर को तो इज्जत दो, वोटर को जिंदा तो रहने दो। नहीं देखिए, अब आप एक गुजारिश ये है कि आप मुझे सिर्फ इतनी इजाज़त दें कि मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, भले से मुझे लगता है आपसे इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी पे ये फैसला ना आपने या मैंने करना है, एक स्टेटेड पोजीशन है, लिखी पड़ी बात है। एक फॉरेन डिप्लोमेट अगर किसी एक्सीडेंट में कोई उसके नतीजे में कोई हलाकत हो जाती है तो उसकी क्या पोजीशन होगी, तो ये तो स्टेटेड पोजीशन है। अब अगर आपने चेंज करनी है तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको एजिटेट करना पड़ेगा, और आप अकेले यूनिलेटरली उसे कर भी नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको चले मैं एक वक्फा ले लूँ मलिक साहब। एग्जैक्टली मैं एक वक्फा ले लेती हूँ। स्टेटेड पोजीशन है एब्सोल्युटली, मगर कवानीन को बदलना हो, हमने अपनी पार्लियामान में एक नाअहल शख्स को कायद बनाना हो तो फुर्तियों में लेजिस्लेशन होती है सर, इस तरह। बहरहाल वी हैव टू मूव ऑन टू पॉलिटिकल इशूज़ एज वेल। एक वक्फा लूँगी और वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह हर माँ बाप को अक्रॉस द ग्लोब ऑफ कोर्स औलाद के गम से बचा के रखे, आमीन। वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस, न्यूज़ आए। का शुक्रिया। नाज़रीन, मियाँ साहब एक और राह से पर्दा उठाना चाहते हैं और अभी सिर्फ ट्रेलर दिया है कि 126 दिन के धरने के पीछे इमरान खान और ताहिरुल कादरी के अलावा कोई और भी था। मियाँ साहब जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, आयरनी ये है कि उन्हीं की हुकूमत में उन्हीं की काबीना के वजीर ये इंकशाफ बारहा कर चुके हैं और मियाँ साहब के हाथों सजा भी पा चुके हैं। इसलिए हुई कि कुछ ऑडियो कैसेट्स प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली जो शायद आईबी ने टेप की थी, उसमें ओपनली यानी कि कॉन्स्पिरेसीज की बातें थी। जब उन्होंने ये इससे पूछा उनसे ज़हीरुल अब्बासी से, हैरानगी हुई उन्होंने उसको कंफर्म करने के लिए उन्हें बुलाया। वो उनसे पूछा गया कि भाई आप ही की आवाज़ है, तो उनका जी बिल्कुल मेरी आवाज़ है। तो उसके बाद उन्होंने बस जो मुझे पता लगा कि उन्होंने कहा कि जी आप चले जाएं। मियाँ साहब का कमाल ये है कि जमात में जिसने भी मुकद्दस गाय के तकद्दुस पर ज़रा भी सवाल उठाया वजारत से गया, और तो और अपनी ही हुक्म बजावरी पर भी अपने वज़रा को किसी इदारे के इत्मीनान के लिए निकाल बाहर किया। अब आज मियाँ साहब खुद टक्कर ले चुके हैं क्योंकि मामला खुद ही का है। सो जमात में भी नेचुरली बहुत सी बेचैनी है, मगर मियाँ साहब जमात की सियासत दाव पर लगाकर टकराव का ये तमगा अपने सीने पर क्यों सजाना चाहते हैं, ये हम नहीं, आज चौधरी निसार भी समझना चाह रहे हैं। आज मुतनब्बे किया है पलवे शाह चौधरी निसार साहब ने कि ये काम नहीं रुका। अगर ये सिलसिला और लाहे अमल के ऊपर गौर फिक्र नहीं किया मुस्लिम लीगियों ने, तो हर मुस्लिम लीगी ने किरदार अदा ना किया तो पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। और उनका ये भी मानना है कि ये अमर इंतहाई तशवीशनाक है कि इससे पहले हमारी हुकूमत में ख़त्म नबूवत का मसला बना और उसके बाद मुल्की दुश्मन के इल्ज़ामात लगने लग गए। देखिए, चौधरी निसार साहब की बात पे तो मैं बाद में आऊँगी, लेकिन सबसे पहले मियाँ साहब की बात पे। मियाँ साहब ये भी बताएं कि उन्होंने किसके कहने पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो लॉन्ग मार्चेस किए काजी हुसैन अहमद के साथ, वो किसके कहने पे किए। वो ये भी बताएं कि वो जो पैसे लेन देन होता रहा असगर खान केस में जो अब सुना भी जा रहा है, वो क्या था। वो ये भी बताएं कि वो किसके कहने पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार देते रहे। वो ये भी बताएं कि वो जो तस्वीरें छपाते रहे राजीव गांधी के साथ, वो किसके कहने पे मोहतरमा की तस्वीरें छपाते रहे। पहले तो वो अपनी पोजीशन क्लियर करें। दूसरी बात ये, जो आपने मुशाहिदुल्लाह साहब का इंटरव्यू दिखाया, आपको याद होगा कि जब ये शोशा छोड़ा गया, ये मियाँ साहब की कैबिनेट के चंद लोगों को टास्क किया गया कि आप जाएँ और ये बातें करें
एक तरफ से उनको टास्क करते थे, टास्किंग होती थी, और दूसरी तरफ से फिर ये उनको हटाने का एक ड्रामा होता था। तीसरे दिन वो वहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस में मियाँ साहब के दाएं या बाएं नजर आते थे, परवेज रशीद हो, मुशाहिदुल्लाह हो या कोई और हो। आप मुझे बताएं इस सिलसिले में जिसने ऐसी बातें की और उसके बाद ISPR की एक डिटेल्ड इस पर बयान आया कि ये बातें गलत हैं, इन बातों को बंद किया जाए, लेकिन आप मुझे बताएं कि जिस दिन इन्हें हटाया गया, जिस भी कैबिनेट के वजीर को, चाहे परवेज रशीद हो या मुशाहिदुल्लाह साहब हो, अगले दिन कौन सा ऐसा वजीर था उनमें से जो मियाँ साहब के साथ नहीं बैठा था? वो अगले दिन मियाँ साहब के साथ सबसे जो अच्छी कुर्सी होती थी सामने नजर राव तहसीन को भी वापस लगा दिया गया है DG रेडियो। तो लिहाजा ये बातें तो फजूल है, इनकी अपनी पैदा करदा एक इनका शोशा था कि एक तरफ से इनको हुल्ला शेरी दो और दूसरी तरफ से सैक करने का ड्रामा। शीरी साहब, ये आपको धमकी दिखाई दे रही है जो मियाँ साहब ने आज दी है कि और भी बड़े किरदार थे, वक्त आने पे बताऊंगा? देखिए, अव्वल तो एक शख्स जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा है उसको कानून का भी पता है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का भी पता है, उनके जो आर्टिकल 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका भी इनको पता होना तो चाहिए, अगर नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। तो ऐसे बयान देना, पाकिस्तान के दुश्मनों को आप हिमायत कर रहे हैं उनके लिए, उनको आप चार्जशीट तैयार करके दे रहे हैं। जैसे कि परवेश ने कहा, मियाँ साहब खुद पले फौज की ज़ियाउल हक की गोद में, तो इनको पता है कि किधर से प्रेशर आता था, कि किसके कहने पे ये हरकतें करते थे, और मोहतरमा की तस्वीरें वो जो बेहुदा सी फोटोशॉप की गई, कोई शर्म व हया नहीं थी इनको, ये सारा कैसे करते थे। और सबसे बड़ी बात, अजहर खान केस का प्रूफ है कि इन्होंने तो पैसे लिए हैं उधर से, तो उसामा बिन लादेन से इन्होंने पैसे लिए। ये किस पे इल्जाम लगाना चाह रहे हैं? अब वो एक नया तमाशा एलियंस का शुरू कर दिया है। खुदा, अब मुझे समझ नहीं आती भाई, मियां नवाज शरीफ तो ना अहल हो गए, लेकिन इन्हीं की पार्टी हुकूमत में है और ये उस तरह का रवैया रख रहे हैं जैसे ऑपोजिशन में है। मतलब कल शाहिद खाकान अब्बासी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे झूठ बोला, सरासर झूठ, जब मियाँ साहब ने डॉन अखबार खुद पढ़ के कहा कि ये बिल्कुल सही बयान है और इसमें क्या गलत है। और शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ खड़े होने के बजाय एक नाअहल प्राइम मिनिस्टर की हिमायत करते हुए कहते हैं वो डिस्टॉर्ट हुआ बयान, जब वो शख्स खुद कह रहे हैं कि डिस्टॉर्ट नहीं हुआ। इट वाज इन वेरी बैड टेस्ट आल्सो मलिक साहब, क्योंकि ना कि सिर्फ आपके अस्करी जराए जो हैं बड़े बरहम थे इसके ऊपर, नेचुरली बिकॉज आप सदारत कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की, उधर कुछ और कहते हैं, अंदर आके कुछ और कह रहे हैं। सेकेंडली, आपने एक रिपोर्टर को, इन अदर वर्ड्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसको झूठा करार दे दिया है। He's called him a liar in other words. But sir, naturally I'm sure ये रिपोर्टर तो वेट कर रहे हैं कि मियाँ साहब इंकारी हों, तो उनके पास इतना कुछ और बताने को, फिर सब कुछ बताएंगे बैठ के। अगर अखबार में गलत खबर छापी थी तो इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? खबर गलत नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे बहस जरूर हो सकती है। और मुझे भी ऐड करने कहा जरूर है मियाँ साहब, जब तक कोई जनरल हाजिर सर्विस होता है तो मियाँ साहब की जुर्रत नहीं होती इसको कुछ कहने की। जिस दिन वो कुर्सी से उतरते हैं सब लोग शेर बन जाते हैं। आप सब उनकी बात पे आप सब भी शेर बन जाते हैं। ऐसी बातें तो ये करने का ये खासा रखते हैं, मगर ये कागजी शेरों का काम है, असल शेर ऐसे नहीं करते। अच्छा, सो मलिक साहब बताइए कि क्या ही बेहतर हो मियाँ साहब ये धमकियां ना दें, वो वजारत उज़्मा के मनसब पे बैठ चुके हैं। अगर वाकई इतने संगीन खतरात लाहक हैं, नेशनल सिक्योरिटी का ये इशू था, कल भी उन्होंने कह दिया कि मैं घर दुरुस्त करने की बात करता हूँ, उसे डॉन लीग्स 1 बना देते हैं। सो अगर वाकई ये मसले थे तो डोंट यू थिंक कि ये कौम की अमानत है ये राज, जिनको वो एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, अपॉर्चुनिस्टिक टूल के जब वक्त आएगा, जब मेरी जरूरत होगी तो बताऊंगा? देखिए महर, मैं इसमें 2 बातों की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि एक तो मियाँ साहब की अपनी पोजीशन है जो उन्होंने ली हुई है और उस पर उन्होंने बड़ा फर्मली वो अपनी उस पोजीशन पे खड़े हैं। अब पार्टी में देखें, मैं भी उनकी पार्टी का एक वर्कर हूँ और मुझे भी इस बात की फ़िक्र है कि अगर वो जो कह रहे हैं और जिस अंदाज से वो कह रहे हैं तो उसको और जो फिर पार्टी ने अपनी अपोजिशन दी कि उसको मिस इंटरप्रेट किया गया, लेकिन बाद में अगले दिन मियाँ साहब ने उसको रीइटरेट कर दिया। अब अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर एक इलामिया जारी किया जाता है और फिर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर उसको निगेट करते हैं। तो ये एक चीज़ की रिफ्लेक्शन तो है कि मैटर बहुत सेंसिटिव है, सो इस पर बड़ी केयरफुली बात करनी होगी, मुझे भी बड़े केयरफुली बात करनी होगी। ऑब्वियसली ऑन वन साइड माई पार्टी लीडर, वो जो बात कर रहे हैं ऑब्वियसली उसकी एक सैंक्टिटी है जो वो कह रहे हैं, मुझे बड़ी एहतियात से उसके ऊपर बात करनी है।
एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बात कर रही है और वो एक इलामिया जारी कर रही है। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इन सबसे बढ़कर आपका मुल्क है सर, उसका नैरेटिव है, उसकी बका है। जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन है, जैसे भी आपके पास शीरी बीबी बैठी हैं, पलवशा बैठी हैं आपके पास, ये इतनी पोलराइजेशन है कि आसिफ जरदारी साहब कुछ कहेंगे, उनके रैंक्स एंड फाइल्स उसी लेटर एंड स्पिरिट में ये बगैर देखे उनके नज़दीक शायद ये होगा कि मेरा नेशनल इंटरेस्ट, मेरा पार्टी लीडर बड़ा बेहतर अंदाज में वॉच कर रहा है। अब मियाँ साहब कुछ कहेंगे तो ऑब्वियसली है वो फुल कन्विक्शन इन हिम कि वो सर आपको अभी भी लग रहा है कि आपका नेशनल इंटरेस्ट बेहतरीन तरीके से आपके ताहयात कायद जो हैं उसकी तर्जुमानी भी कर रहे हैं, उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, देखिए ना, मेरी नेशनल इंटरेस्ट या पर्सनल इंटरेस्ट में भी थोड़ा फर्क कर लेते हैं। मुझे थोड़ी इजाज़त दें, मैं ज़रा खुल के बात करता हूँ आपसे। देखें दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि एक बड़ी पोलराइज्ड सोसाइटी आपकी बन गई है, बहुत पोजीशंस लोगों ने ले ली हुई हैं अपनी। अब जो मियाँ साहब जो कह रहे हैं, अब ऑनेस्टली स्पीकिंग आप, मैं, हम सब लोग जानते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर बात करने से पहले हाथ पांव जलते हैं बंदे के, ये दुरुस्त है। अब ये जो 70 साल की तारीख का बार बार हवाला दे रहे हैं, हम तो स्टूडेंट्स हैं सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के, हम स्टूडेंट हैं पार्लियामेंट की ग्रोथ के, जुडिशरी के, हम तो पॉलिटिक्स में अपना यकीन रखते हैं, हम क्रिएशन है इस पॉलिटिक्स की। तो हम हर सूरत ये चाहेंगे कि कुछ मोहतात बात हो और जिसके नतीजे में कोई मुल्क के अंदर बेहतरी पैदा हो, कोई एक ऐसा इस्तेकाम है। अगर आप इजाज़त दें सर, मैं अर्ज़ करूं, अगर बिल्कुल आप भी बात कर लीजिए, अगर आप इजाज़त दें सर, एक मसला है सिर्फ, द प्रॉब्लम हेयर इज़ नॉट के मुल्क की दिफा के ऊपर, या मैं तो एक्चुअली गद्दारी के ऊपर बात भी नहीं करना चाहती। आई डोंट थिंक ये हमारा काम है कि गद्दारी की सर्टिफिकेट या पेट्रियाटिज़म को इधर जांचने की कोशिश की जाए। बट श्री बीबी, डोंट यू थिंक कि एक वज़ीर आज़म अगर तब खामोश था और तब इनकारी था कि ऐसी तो गुफ्तगू हुई नहीं अंदर डॉन लीग्स 1 ओरिजिनल, जो आपको बात याद है कि शहबाज शरीफ साहब और DGISI तब के जनरल रिजवान साहब के बीच में तल्ख कलामी हुई कि सरपरस्ती आप लोग करते हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, हम पकड़वाते हैं, आप छुड़वा देते हैं। फिर मियाँ साहब ने कहा कि भाई दौरे करें सारे एपेक्स कमेटीज़ को जाके और सारे सेक्टर कमांडर्स ISI को जाके कहिए कि ना सरपरस्ती की जाए, नहीं आइंदा से कभी होगा, उनको पकड़ा जाए। ये पूरी एक खबर थी, वो इंकारी थी, ऐसा हुआ ही नहीं। आज वो कह रहे हैं ऐसा हुआ और परवेज रशीद को निकालना गलत था। तो यानी कि तब आज जितने नजरियात हो गए और मुल्क को सामने रखते हैं अपेरेंटली, राइट? तो बीबी, अगर तब ये सब कुछ हो रहा था और सच था, तो उनको अपनी हुकूमत बचाने के लिए जो उन्होंने फातमी से लेके परवेज रशीद सबको कुर्बान किया, नहीं करना चाहिए था ना? उन्हें कहना चाहिए था वी कॉल इट क्विट्स, बट दिस इज नॉट हाउ द ऑर्डर विल। ये उस वक्त हाउ द हाउस विल बी रन, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो प्रेस रिलीज उस वक्त निकली थी, उन्होंने कहा था ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। डॉन चौधरी निसार ने भी कहा था। और देखें इशू नवाज शरीफ का नहीं, वो तो अपनी जान बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या करेंगे। इशू प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी का है। इन्होंने चेयर की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, उसका एक प्रेस स्टेटमेंट आया, वो प्रेस स्टेटमेंट अभी निकला ही था, इन्होंने बाहर जाके प्रेस को कहा कि मैं तो एज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूं। तो आपने जो मीटिंग चेयर की, आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसको रद्द कर दिया। भी बहैसियत वजीर आजम गलत किया, आज अब्बासी साहब भी बहैसियत वजीर आजम गलत कर रहे हैं। मतलब एक ने अपनी हुकूमत को आगे रखा ओवर आई एम सॉरी नेशनल सिक्योरिटी या द कंट्री, और एक जो है अपने कायद को आगे रख रहा है वर्सेस द कंट्री अगेन। वही बात है ना, जस्ट सेइंग, लाइक ये हमने तो लाइक मुल्की मुफाद है क्या फिर? नहीं, यही चौधरी निसार के वर्ड्स थे, ये मुश्तरका मसला है। वो जो पहली ओरिजिनल खबर थी, हमारे दुश्मनों को चार्जशीट करने का मौका दे दिया, ये सिक्योरिटी ब्रीच है, ये कौमी सलामती का मसला है। आज कहते हैं सब कुछ सही हुआ थी, वो बातें हमने की थी अंदर और नहीं निकालना चाहिए था। एक सवाल जो बहुत उठता है कि ये इस वक्त ना मुंबई का इशू कहीं इंटरनेशनली उठा हुआ था, ना कहीं और उठा हुआ था, इन्होंने ये इस वक्त क्यों उठाया जबकि पाकिस्तान अगले महीने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट पे आ रहा है ऑलरेडी, और बल्कि ब्लैक लिस्ट हो जाएगा इन बातों से। यही मैं कहने वाली हूँ। तो आप अब चाह रहे हैं कि हम ब्लैक लिस्ट पे आए। कभी मुल्क का सोचा नहीं है नवाज शरीफ ने, अपनी जान का और अपनी मफाद का पहले सोचा है, सीधी सादी बात है। और प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कल पार्लियामान में वाजे कर दिया कि पाकिस्तान एक तरफ और वो नवाज शरीफ को एक बड़ा सच्चा सवाल है, एक वक्फा लूंगी फिर आपसे भी पूछूंगी, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि हमारी सियासी जमातों में ना तो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है असल रूम में, ना किसी का इतना दा होता है कि अपने लीडर के सामने खड़ा और कहे कि ये गलत है सर। तो आज जब चौधरी निसार तमाम मुस्लिम लीगियों को कह रहे हैं कि अपना किरदार अदा करो और
समझने की कोशिश करो कि क्या गड़बड़ हो रही है पार्टी में, हम क्यों इस इशू में फंसे हुए हैं, इस मरहले पे पहुंचे हैं। मुतनब्बे कर रहे हैं मुस्लिम लीगियों को चौधरी निसार साहब और कह रहे हैं वरना पार्टी को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो जाएगा। क्या ये मुमकिन भी है ऐसे पार्टी स्ट्रक्चर्स में जिधर जी हजूरी के अलावा कुछ नहीं होता? एक वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो बहरहाल ये सवाल अपने जहनों में रखिएगा कि अगर ये सच है डॉन की ओरिजिनल खबर जो कि बिल्कुल सच थी, तो यकीनी तौर पे सवाल आप सबका ये पूछने का है कि मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब का नाम इस स्टोरी में से और उस रिपोर्ट में से, कमीशन रिपोर्ट में से कैसे निकाल दिया गया और क्यों दूसरे लोग जो हैं उनको भुगतना पड़ा। शायद राहील शरीफ साहब और जनरल रिजवान अख्तर से ये भी पूछना चाहिए और अब पूछ सकें, जिस तरह ये कह रही हैं पलवेशा साहिबा कि जब वो रिटायर हो जाते हैं तो सब शेर हो जाते हैं, पूछना आसान होता है। ये मुझे बताइए कि ये चेयरमैन नैब को बुला के उनसे एक्सप्लेनेशन लेने का ये क्या एक नया सिलसिला छिड़ा है पार्लियामान में? ये पार्लियामेंट जो तमाशा है ना जी, पार्लियामानी सुप्रेमेसी, जिधर सुप्रेमेसी होनी चाहिए वहां तो आप करते नहीं है। लेकिन इधर आप एक इदारा जो कि ऑटोनमस है, जो इंडिपेंडेंट है, जो तहकीकात करता है करप्शन की, उसके चेयरमैन को बुलाना टू गिव एक्सप्लेनेशन, उसका नवाज शरीफ साहब क्यों गलत किया, हम बड़े क्लियर हैं, समन गलत किया, खबर भी गलत थी ना। खबर के ऊपर आपने इतना लंबा कटा चटा जिसके अगर आप देखें उसके कितने दूर रस असरात हैं। इन इफेक्ट आप गद्दारी की बात कर रहे हैं यार, कि एक साबिक वजीर आजम ने पैसे भिजवाए हैं। ये कमेटी का बिल्कुल नहीं जवाब बनता कि आप समन करें टू गिव एन एक्सप्लेनेशन। इस तरह नहीं होता, आप कोर्ट में जाएं। ये क्या तरीक़ेकार है? और असल चीज़ जो है, जो हमारी पार्टी ने आज कमेटी में डिमांड किया है कि असल में तो मियां नवाज शरीफ को समन करें कि उन्होंने ये क्यों कहा, ये बयान क्यों दिया। अब तो वो उनकी कोई इम्यूनिटी नहीं है, कुछ नहीं है, वो आके उनको क्यों नहीं समन कर रही? वैसे भी कभी नहीं थी। मगर ये भी सुने पलवेशा, ये आज जो है आपके साबिक वजीर आजम जो हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, जमाली साहब ने। उन्होंने ये कहा कि इदारों को बुला कहा जा रहा है, असेंबली में खड़े होकर झूठ बोला जा रहा है, और चेयरमैन नैब से जो है वो अगर खुश नहीं है तो वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? देखिए, जहां नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अलामिये को एक 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म रिजेक्ट कर देता है, यानी इस मुल्क की जो भी तारीख है डेमोक्रेटिक, उसमें शायद ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या उसके मुतबादिल जो भी फोरम रहा जिस ज़माने में भी, उसके अलामिये को वो कमेटी जो कि इस मुल्क की दफा की बराह रास्त से, या वो जमात कर दे जिसका अपनी हुकूमत है, जिसका अपना वज़ीर आज़म चेयर कर रहा है, जिसका प्राइम मिनिस्टर खुद उसको रद्द कर दे 2 मिनट बाद। पहली दफा हुआ 70 सालों में, और किया किसने? जो नाहल हो चुका है। लेकिन वो वजीर आजम को ये जुर्रत उस वक्त नहीं हुई कि वो कमेटी में बैठकर अपने लीडर को डिफेंड करते और कहते कि ये गलत है जो आप मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मलिक साहब उधर, अब्बासी साहब बिल्कुल खामोश थे जब ये बन गए। मैं आपको कह रही हूँ ये कागजी शेर हैं, शेरों पे ये काम नहीं होता। मलिक साहब भी मुस्कुरा दिए। मलिक साहब, ये सही तरीका है सर? आप कानून को भी समझते हैं कि एक नैब चेयरमैन को बुलाकर कहना कि एक्सप्लेन करो, वजाहत दो कि नवाज शरीफ साहब पे क्यों बनाया ये रेफरेंस या क्यों ये खबर आई? इज इट ओके? देखिए बहर, मुझे 2 चीज़ों पर बड़ा एतराज़ था। नंबर 1 के इस तरह की जो प्रोब शुरू की नैब ने और एक अखबारी ख़बर पे शुरू की और फिर एक प्रेस रिलीज़ जारी किया, अब ये मकसद, ये तीनों बातें बड़ी गलत थीं। अच्छा, अब अगर उन्होंने ये प्रोब शुरू की भी थी तो पहले नैब को अपने तौर पे इन चीज़ों को पहले वेरीफाई करना चाहिए था, जो नैब का एक तरीकाकार है कि वो पहले एक इन्वेस्टिगेटिव स्टेज पे जाने से। मेरे पास वक्त कम है, मैं आपकी इन सारी बातों से इत्तेफाक करती हूँ। हमने कड़ाकेदार शोज किए हैं इसके ऊपर। यकीन मानिए कि गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। मेरा सिर्फ उस पे ये मानना है और ये कहना भी है कि पार्लियामेंट्री कमेटी किसी भी ऐसे मेलाफाइडी, कलरफुल, टेंटेड एक्ट को अगर अपने पास नहीं बुलाएगी तो फिर वो ज्यादती करेगी। पार्लियामेंट्री कमेटी एक इट्स ऑल पावरफुल, इख्तियारात तो सारे हैं, वो किसी को भी मदद कर सकते हैं।
अगर कानूनी एतबार से नैब चेयरमैन को बुलाया जा सकता है। नैब चेयरमैन के खिलाफ अगर कुछ करना है आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे नहीं वजाहत के लिए। कानूनी एतबार से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया को मुस्तरद किया जा सकता है। देखिए मेरी बात सुने, सर जल्दी बात कीजिए, मेरे पास वक्त कम है। नैब चेयरमैन को बुलाया जा सकता है, जस्ट नीड टू से थैंक यू नाउ। एग्जैक्टली बिल्कुल बुलाया जा सकता है और दुरुस्त बुलाया गया, और अगर वो बुलाकर ओके बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। नियत कैसे हो सकती है? जाने से पहले सिर्फ आपको जल्दी से बताती जाऊं, मेरे दिल के करीब बहुत है, आई एम श्योर श्री मजारी साहिबा के दिल के करीब भी होगा। नाज़रीन, DI खान के अंदर शरीफा बीबी 16 साल की बच्ची आपको याद होगी, जिसको भरना करके वीडियो उसकी बनाई गई, गलियों में उसे घुमाया गया कपड़े उतार कर। 7 माह गुजर चुके हैं और आज पुलिस ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है, मगर अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस ने 7 माह बाद भी मरकजी मुल्जिम सजावल को गिरफ्तार नहीं किया। आज भरी अदालत में DSP इन्वेस्टिगेशन खालिद उस्मान का यह कहना था और उन्हें इतराफ किया कि पुलिस ताहाल मुल्जिम सजावल का कोई खोज नहीं लगा सकी। खैबर पख्तूनख्वा में मिसाली और फौरी इंसाफ के नारों में अदालत ने मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को मजीद 40 दिन की मोहलत दे तो दी है, लेकिन क्या यह है खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली, हकीकी तस्वीर जिसके भारा हम भी गुनगाते हैं जब हम उधर जाते हैं? क्योंकि अपनी खवातीन रुकने असेंबली शीनी बीबी हों, इनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज पर तल मिला उठते हैं सारे, सब के सब। हम भी करते हैं। हमने एक नहीं 5-6 शोज किए हैं कि हाउ डेयर समबडी स्पीक अगेंस्ट अ वुमन और हर इंटेग्रिटी लाइक दैट। लेकिन क्या मासूमा शरीफा बीबी जो है 16 साल की जवान बच्ची, गरीब है, बेबस है, कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे, क्या वाकई ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह के खिलाफ तो हम हशर उठा देते हैं, लेकिन क्या शरीफा बीबी की इज्जत का जनाजा निकालने वालों के साथ इंसाफ किया जाएगा इस मुल्क में? दुआ में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।